Students, in this lecture, I will be introducing you to the subject pharmaceutical microbiology, and we will also learn about the history of microbiology. Myself, Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Jagadri. So, microbiology is defined as the study of organisms and agents that are too small to be seen clearly by the naked eye, including bacteria, fungi, algae, protozoa, and viruses. It covers the study of their structure, physiology, metabolism, reproduction and classification. तो स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम उन जीवों की स्टडी करते हैं जो हम अपनी आंखों से नेकेड आई से नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। उसके द्वारा ही हम उन माइक्रोब्स को देख सकते हैं। So we can see in the picture, there is a picture of microscope, slide showing microbes and a cartoon of a microbes. So are the microbes hero or are they villain? Some microbes are beneficial for us and they are involved in making of yogurt, cheese and wine. Also many antibiotics, drugs that kill microbes, alcohol and processing of domestic and industrial waste. So we can see that microbes are beneficial for us as they are used for making various food items or other products. So in the picture we can see that the microbes can be used for making the yogurt, the cheese, wine and antibiotics. Also some microbes are harmful to us and cause disease, spoil food and deteriorate materials. So in the picture we can see that they can cause disease, such as in this picture we can see that there is some infection of skin. In second picture we can see that there is a growth of fungi on bread and there is a rotting of the material such as wood, clothes, etc. So the microbes can be both hero or villain. They can be beneficial and also they can be harmful for us. So now we will move towards what is pharmaceutical microbiology. So when the concept of microbiology are applied to pharmaceutical processes, the subject is then called as pharmaceutical microbiology. The microbiological principles such as microbe, culturing, sterilization, disinfection, fermentation, etc. are widely used in field of pharmaceutics. So these principles of microbiology, when they are applied to pharmaceutical processes, then we say them it is a pharmaceutical microbiology. So in the picture we can see this is a culture of microbes. This is a autoclave. This instrument is used for sterilization. These are disinfectants, Harpic, Dettol. This is beer which is produced by fermentation process. Okay. So what is the role of microbiology in pharmacy? Why are we studying microbiology in pharmacy? Microbiology has a great role in pharmacy as many compounds such as antibiotics, vitamins and amino acids are manufactured using microbes. Example of antibiotic manufactured using microbes is amoxicillin shown in picture, vitamin C and amino acid L-glutamine. So all these compounds they can be easily manufactured using fermentation process by using microbes. So next, moreover, many life-saving vaccines are prepared using microbes. Many life-threatening diseases such as polio, anthrax, smallpox have been eradicated by use of vaccine. So in the picture we can see polio. Polio or poliomyelitis is a crippling and potentially deadly infectious disease. It is caused by poliovirus. The first polio vaccine was inactivated polio vaccine. It was developed by Jonas Salk and came into use in 1955. So we can save lives by making vaccines. So vaccines are preparations that are given prior to a disease.
so that a person get immune to a disease. पहले ही बीमारी के होने से पहले जो दवाई दी जाए उसको वैक्सीन कहा जाता है। वैक्सीन बॉडी में जाने के बाद इम्यूनो सिस्टम को उसकी एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे कि वो उस जब भी वो वायरस नेचर में जब भी हमारे अंदर आएगा तो बॉडी से फाइट करेगी और वो बीमारी फिर नहीं होने देगी। तो पोलियो की वैक्सीन आपने सबने सुना होगा कि 2 बूंद जिंदगी की, तो ये हमारी एक मेन वैक्सीन है जो आज भी चल रही है, आज भी ये यूज हो रही है। अगर हम इस पिक्चर में देखें, दिस इज अ स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन दैट इज काज्ड बाय वेरियोला वायरस। सो इट इज अ वेरी थ्रेटनिंग डिजीज, so it can be cured by it can be prevented by smallpox vaccine. The first successful vaccine to be developed and was introduced by Edward Jenner in 1796. So first it was given by scarring method. So this is a picture of scar left on the arm. So you can see that there is a scar in the arms of your parents or older persons, as the vaccines were given by scarring method. But nowadays the vaccines are given by injections. तो पहले ऐसे होता था, ये निशान पड़ जाता था क्योंकि ऐसे नीडल से देते थे, तो इसमें पिक्चर में दिखाई गई है नीडल, तो इस नीडल से वो स्कार बना देते थे, वैक्सीन उससे देते थे। पर आज के टाइम में इंजेक्शन यूज होते हैं। सो इन we can see that vaccines are life saving. Now we discuss about the history. So Robert Hooke in 1665 first reported to the world that live small structural units were little boxes or cells as he observed in a thin slice of cork. तो जो पहले सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स देखे थे, माइक्रोब्स नहीं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो क्योंकि पहले तो माइक्रोस्कोप जब बना ही नहीं था, तो उससे पहले तो कुछ नहीं था, तो ये जो माइक्रोस्कोप की यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, ये जो माइक्रोस्कोप है इट वॉज मेड बाय रॉबर्ट हुक। इट इज अ वेरी क्रूड माइक्रोस्कोप। तो इससे 1600 में इसने बनाया था। तो इसके अंदर जो यहाँ पर एक पहली फोटो है, ये एक सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप की है, इसके अंदर सिर्फ एक ही लेंस है, इससे ही जो इमेज इनलार्ज करी जाती थी। उसके बाद ये जो दूसरी इमेज है, ये वाली जो है, ये टू लेंस माइक्रोस्कोप की है, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो जब माइक्रोस्कोप बना उसके बाद ही हमें माइक्रोब्स या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स विजिबल हुए। सो इन द राइट देयर इज अ ड्राइंग of cork cells as seen and depicted by Robert Hooke. So cork क्या होता है, एक कॉर्क क्या होता है, वुड होता है। इसका जब एक बारीक सा ब्लेड के साथ सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, तो इसमें उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं। तो वो क्या थे, उसको इसने नाम दिया सेल। वहां से सेल नाम की जो वो ही डिस्कवरी हुई। सेल वहां से क्वाइन होगी टर्म, फिर सेल कहने लग गए हम, और माइक्रोबियल सेल्स को या फिर ह्यूमन सेल्स को, एनिमल सेल, प्लांट सेल, तो वहां से ये स्टार्ट हुआ। तो इसने ये जो ड्राइंग बनाई रॉबर्ट हुक ने, यहां से सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ। Second scientist was Antony van Leeuwenhoek. The existence of microorganisms was actually proven in 1677 when Antony van Leeuwenhoek in Holland saw them for the first time by using a single lens microscope with magnification approaching 300 times and discovered a previously invisible world. Antony van Leeuwenhoek is named father of microbiology. So this is a replica of microscope by van Leeuwenhoek. So आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये एक रेप्लिका है। इसके अंदर क्या है, आपका सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप है, और ये एक माइक्रोस्कोपिक सेक्शन ऑफ 1 year old एश ट्री का है, जो ड्राइंग बनाई थी एंटनी वैन ल्यूवेनहोक ने उस टाइम पे। सो सेकंड, इसके बाद जो दो साइंटिस्ट थे, इनके बारे में मैंने पढ़ लिया है कि इन्होंने कैसे सेल को देखा, एक साइंटिस्ट ने कैसे माइक्रोब्स को देखा। उसके बाद हमें पता होना चाहिए द टू थ्योरीज नोन एज बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस
जनरेशन। सो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, स्पॉन्टेनियस शब्द का मतलब होता है अपने आप से ही जनरेट हो जाना। दिस थ्योरी वॉज सिंथेसाइज्ड बाय एरिस्टोटल इन 384 to 322 before Christ. Theory stated that life like bees, frogs and other animals originate from fertile mud, decaying carcasses. तो इस थ्योरी में उसने ये कहा था कि जो लाइफ है वो अपने आप ही ऐसी नॉन लिविंग थिंग से जनरेट हो सकती है। कैसी थिंग से? जैसे नदी के अंदर मड होता है, जो फर्टाइल मड है, उससे फ्रॉग जनरेट हो जाते हैं, अपना पैदा हो जाते हैं। मुर्दे होते हैं, कार्केसिस, कार्केसिस मुर्दे किसी भी चीज के, एनिमल के, किसी के या ह्यूमंस के लगा लो, तो उसके अंदर अपने आप ही वॉर्म्स पैदा हो जाते हैं, मैगट्स कहते हैं उनको। तो उसकी ये थ्योरी थी कि अपने आप से होते हैं। पर बाद में जॉन नीदम इन 1749 experimented with meat exposed to hot ashes and observed the appearance of organisms which were not present at the start of the experiment and concluded that bacteria originated from meat, which supported theory of abiogenesis. तो इसने, साइंटिस्ट ने क्या करा, इसने ब्रोथ लिया। ब्रोथ क्या होता है? ब्रोथ इज अ लिक्विड कंकोक्शन मेड बाय बॉइलिंग मीट। मीट को बॉयल करो तो उससे जो लिक्विड बनता है उसे ब्रोथ कहते हैं। उसको उसने हीट करा, फ्लास्क को खुला छोड़ दिया, वेट करा, उसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी। तो उसने कहा कि जो एरिस्टोटल ने जो थ्योरी दी थी एबायोजेनेसिस की, वो ठीक है, लाइफ अपने आप से पैदा हो सकती है। पर उसके बाद इस थ्योरी को देन द चैलेंज टू एबायोजेनेसिस वाज डन। एबायोजेनेसिस कहती है कि लाइफ अपने आप से पैदा हो जाती है। बट दिस थ्योरी वाज चैलेंज्ड बाय लाज़ारो स्पेलेंज़ी in 1729 to 1799, boiled beef broth for an hour and then sealed them. No microbial growth appeared after incubation. The results were confirmed by repetitions, but he was unable to convince Needham, who said that air was necessary for the growth of microbes and it was excluded by sealing the flask. तो इसने क्या करा, ब्रोथ को हीट किया, फ्लास्क को ओपन छोड़ दिया, तो ग्रोथ हो गई। ठीक है, ब्रोथ को हीट किया, फ्लास्क को सील कर दिया, कॉर्क लगा दिया उसके ऊपर, नो ग्रोथ होगी। जैसे ही कॉर्क को खोला उसके बाद वेट किया, फिर ग्रोथ फिर दोबारा से होगी। तो इसने तो ये कह दिया कि ग्रोथ होने के लिए कोई चीज बाहर से आनी चाहिए, तभी ग्रोथ माइक्रोब्स की हो पाती है, नहीं तो नहीं होती। पर निदम जो उस टाइम का एक दूसरा साइंटिस्ट था, उसको ये कन्विंस नहीं कर पाया। उसने क्या कहा कि एयर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स and it was excluded by sealing the flask. तो इस तरीके से निदम ने जो स्पेलेंज़ी की जो थ्योरी थी उसको फेल कर दिया। In another experiment by Francisco Redi in 1665, and he showed that maggots which develop in putrefying meat are larval stages of flies and will never appear if the meat is protected by placing it in vessel closed with fine gauze so that flies are unable to deposit their eggs on it. तो इसने क्या करा, ओपन कंटेनर लिया, उसके अंदर मीट डाल दिया, उस पर मक्खियाँ बैठ गई, मक्खियों ने अपने एग्स वहाँ पर डिपॉजिट करे, उससे लार्वा बना, और लार्वे से फिर क्या बन जाता है, मैगट्स। मैगट्स लार्वा स्टेज को ही कहते हैं, बाद में फिर मक्खी बन जाती है। फिर इसने क्या करा, कॉर्क सील कर दिया, तो क्या हुआ, कॉर्क सील करने से नो फॉर्मेशन ऑफ मैगट्स इन द मीट होगी। फिर इसने क्या कहा कि अगर एयर भी डालनी है अंदर, कोई दिक्कत नहीं, एयर भी डाल देते हैं। इसने एक जाली लगा दी ऊपर, गॉज कवर्ड कंटेनर, जाली लगा दी, नो फॉर्मेशन ऑफ मैगट्स इन मीट। तो इसने क्या चीज प्रूव की कि मीट के अंदर मैगट्स पैदा होने के लिए हमें उसके अंदर मक्खियों का आना जरूरी है। अगर हम मक्खियों को रोक देंगे तो उसके अंदर मैगट्स पैदा नहीं हो सकते। सो इन अ वे ही चैलेंज द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। उसने एबायोजेनेसिस को गलत करार दे दिया। Also, Louis Pasteur showed that boiled meat infusion can remain clear in swan neck flask open to air through S-shaped tube in which dust particle would settle as air re-entered the cooling vessel. तो जो लुइस पास्चर था, इसने क्या किया, इसने एक एस शेप का फ्लास्क लिया, इसको कहते हैं स्वैन नेक फ्लास्क। इसकी जो गर्दन है बत्तख उस जैसी होती है, हंस जैसी। तो इसने इसको बॉईल करा, उसके बाद वेट किया, उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो सकी। तो इससे
उसके बाद इसकी नेक को ब्रेक कर दिया, फिर वेट किया, इसके अंदर फिर ग्रोथ हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो जो फ्लास्क की जो स्वैन नेक थी, जो भी माइक्रोब एयर में से आता था वो इसके जो बैंड था यहाँ पर आके सेटल डाउन हो जाता था, वो आगे नहीं आ पाता था। इसलिए वो जो आगे ब्रोथ थी उस तक वो नहीं जा पाता था और वो कंटेमिनेट नहीं होती थी। पाश्चर स्वैन नेक फ्लास्क पुट द फाइनल नेल in the coffin of spontaneous generation. The experiment was simple and easily repeatable by anyone with modest means and the result unequivocal. तो जो पाश्चर का एक्सपेरिमेंट था वो उसके जो ए बायोजेनेसिस की थ्योरी थी उसके अंदर आखिरी कील साबित हुई। उसने ये बात साबित कर दी कि माइक्रोब अपने आप पैदा नहीं हो सकते, उसको कहीं से बाहर से आना ही पड़ेगा। द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस was defeated and new theory of biogenesis of life was given by Rudolf Virchow, which stated that life can only originate from living, कि जिंदा चीज से ही जिंदा चीज पैदा हो सकती है, मरी हुई से नहीं पैदा हो सकती। That is known as the theory of biogenesis. So now we will be studying about contribution of scientists. So number one is the Robert Hooke. तो ये मैंने पहले ही बताया है कि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक अ माइक्रोस्कोप, और इसने छोटे छोटे सेल दिखाए थे कॉक के अंदर। उनको इसने कहा था कि ये आपके सेल होते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सेकंड साइंटिस्ट वॉज एंटनी वैन लीeuwenhoek. He proved the existence of microorganism in 1677 using a single lens microscope with magnification approaching 300 times. He originally referred to microorganisms as animalcules from Latin animalculum, tiny animals. Through his experiments, he was first to relatively determine their size. तो इसने साइज भी पता लगा लिया था उनका कि कितने बड़े माइक्रोब होते हैं। एंटनी वैन लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं एडवर्ड जेनर। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। After observing that cowpox infection seemed to protect humans against smallpox, Jenner inoculated an 8-year-old boy with cowpox matter from a blister on the hand of an English milkmaid. He then repeatedly attempted to challenge the cowpox inoculation by exposing the boy to smallpox material, but the boy never fell ill. Jenner had demonstrated smallpox immunization. तो वैक्सीन का सबसे पहली खोज करी थी इस इंसान ने। तो इन्होंने ये क्या डॉक्टर थे ये, तो डॉक्टर ने इसने क्या ऑब्जर्व करा कि जो पूरे शहर में स्मॉल पॉक्स की, जिसको हम बड़ी माता बीमारी कहते हैं, उसको वो पूरे उसमें शहर में फैली हुई है। पर इसने अपनी ऑब्जर्वेशन से क्या देखा कि जो स्मॉल पॉक्स है ये शहर में तो है, पर जो गांव के लोग हैं जहाँ पर गायें रखी होती हैं उन्होंने, उनको ये बीमारी नहीं होती। तो इसने उसमें क्या पाया कि गायों को एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है काउपॉक्स। वो काउपॉक्स जब गाय को हो जाती है, गाय से वो जो मिल्क निकालने वाले होते हैं मिल्क मेड्स, उनको भी वो ट्रांसफ़र हो जाती है। पर इंसान के अंदर वो कोई उसके खास लक्षण नहीं होते, वेरी माइल्ड होती है, बहुत ज़्यादा माइल्ड बीमारी होती है वो। तो इसने क्या पाया कि जिन इंसानों को काउपॉक्स से पहले हो रखी थी काउपॉक्स, उनको स्मॉल पॉक्स होती ही नहीं है। तो इसने ये सेम चीज़ को क्या किया, इसने एक इंसान को जिसको काउपॉक्स हुई हुई थी उसके ब्लिस्टर में से थोड़ा लिक्विड लिया और एक बॉय को जिसका इनोकुलेट कर दिया, बॉय के उसके अंदर एक स्कारिंग के थ्रू इनोकुलेशन कर दी। इनोकुलेशन का मतलब होता है बाहर से माइक्रोबियल सैंपल को बॉडी में डाल देना। तो इसने 3-4 बार कराई। उसके बाद फिर क्या इसने क्या देखा कि काउ पॉक्स से इनोकुलेशन के बाद अगर बच्चे को स्मॉल पॉक्स से भी इनोकुलेट कर दें तब भी उसको वो बीमारी नहीं होती। तो इस तरह से एडवर्ड जेनर ने पहली वैक्सीन का यहाँ पर इन्वेंशन करी थी। इसके बाद हैं लुइस पाश्चर। इन्होंने एक प्रोसेस का आविष्कार करा जिसका नाम है पाश्चराइजेशन। Pasteurization is a process in which water and certain packaged and non-packaged foods such as milk, fruit juice are treated with mild heat, usually to less than 100 degrees Celsius, to eliminate pathogens and extend shelf life. तो ये आजकल बड़ा फेमस मेथड है। जो मिल्क होता है
जूस होता है, इस प्रोसेस के थ्रू ही स्टरलाइज करा जाता है। Pasteur also founded modern immunology when he realized that chickens became immune to bacterial disease if injected with weakened a virulent form of pathogenic bacterium। तो इसने क्या खोजा कि जो चिकन होते हैं, चिकन को बीमारी होती है चिकन कोलरा की, तो अगर उनको ऐसे वीकेंड स्ट्रेन के साथ, वीकेंड का मतलब होता है ऐसा माइक्रोब का एक प्रकार जिससे कि बीमारी ना हो, उसको अगर वो एक हेल्दी चिकन के अंदर इंजेक्ट कर देंगे तो उसको फिर वो पैथोजेनिक बैक्टीरियम भी असर नहीं करता। पैथोजेनिक होता है जो बीमारी फैला सकता हो, ए वायरलेंट होता है जो बीमारी ना फैला सके, वीकेंड स्ट्रेन हो। तो इसने लुईस पास्चर ने ये डिस्कवरी करी, और भी इसने 2-3 डिस्कवरीज करी, तो वो हम नोट्स में से एक बार फिर पढ़ेंगे, उसको आप पढ़ लीजिएगा उसे, वेरी सिंपल है वो उसको। इसके बाद आते हैं रॉबर्ट कोच। In 1905, he was awarded the Nobel Prize for Physiology or Medicine. As a founder of modern bacteriology, he identified the specific causative agents of tuberculosis, cholera, anthrax, and gave experimental support for the concept of infectious disease, which included experiments on humans. His research led to the creation of Koch postulates, a series of 4 generalized principles linking specific microorganisms to specific diseases that remain today the gold standard in medical microbiology. सो रॉबर्ट कोच ने क्या करा, इसने ये बताया कि कौन सी बीमारी किस माइक्रोब के कारण हो रही है, क्योंकि पहले पता ही नहीं चलता था। तो इसने पता चलाया, इसने फिर कोच पोस्टुलेट्स दिए, 4 पॉइंट्स दिए इसने, जिससे अगर हम उनको फॉलो करें तो हम पता लगा सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक बीमारी एक स्पेसिफिक माइक्रोब के कारण ही हो रही है। सो कोच पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? रॉबर्ट कोच एस्टेब्लिश्ड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। हिज प्रोसीजर फॉर डिफाइनिंग द एजेंट ऑफ एनी डिजीज कॉल्ड कोच पोस्टुलेट्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 स्टेप्स। तो 4 स्टेप होते हैं इसके। नंबर 1, आइसोलेट द सस्पेक्टेड एजेंट फ्रॉम अ डिजीज विक्टिम। तो जो डिजीज विक्टिम है, जैसे बीमारी है किसी को, मान लो टीबी की बीमारी है किसी को, ट्यूबरकुलोसिस की, तो उसके सैंपल में से, चाहे ब्लड सैंपल हो, कफ सैंपल हो, उसका स्पुटम हो, उसमें से हमने क्या करना है, माइक्रोब को आइसोलेट करना है, उसमें से अलग करना है। सबसे पहले ग्रो द एजेंट इन प्योर कल्चर, उस माइक्रोब को फिर प्योर कल्चर में ग्रो करना है। प्योर कल्चर का मतलब होता है कि उसको लेबोरेटरी के अंदर, पेट्री प्लेट के अंदर कल्चर मीडियम डाल के, जिसमें वो ग्रो हो जाए, उसके अंदर उसको ग्रो कराना है, ताकि और किसी वैरायटी का माइक्रोब ना होए, सिर्फ वो सिंगल ही होए उसके अंदर। उसके बाद इन्फेक्ट अ हेल्दी होस्ट एंड शो दैट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस द क्लासिकल क्लिनिकल डिजीज। फिर उस पेट्री प्लेट में से उसको उठा के माइक्रोब को एक हेल्दी होस्ट के अंदर, चाहे वो एनिमल है या जो भी है, उसके अंदर उसको इंजेक्ट कर दो। फिर पता लगेगा आपको कि उसके अंदर वो जो क्लासिकल क्लिनिकल डिजीज के सिम्टम थे, क्लासिकल सिम्टम क्या होते हैं, जो डिजीज के पक्के होते हैं, वो उसके अंदर पैदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर अगर उसके अंदर वो पैदा हो जाए सिम्टम, फिर उसमें से देन अगेन आइसोलेट द सेम ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द न्यू विक्टिम। तो नया जो ऑर्गेनिज्म है उसमें से फिर वो उसको ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर लेना है। तो अगर ये चारों पॉइंट कोई चीज़ पूरा कर दे तो इससे ये साबित कर सकते हैं हम कि ये जो बीमारी है ये एक स्पेसिफिक यही वाले माइक्रोब के कारण हो रही है। सो दीज आर नोन एज कोच पोस्टुलेट्स एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। Next scientist is Alexander Fleming. His best known discoveries are the enzyme lysosome in 1923. He also discovered the world's first antibiotic substance, benzyl penicillin, also known as penicillin G, from the mold Penicillium notatum in 1928, for which he shared the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1945 with Howard Florey and Ernst Boris Chain. सो स्टूडेंट्स, जो एंटीबायोटिक्स हैं, जब तक इनकी आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले अगर कोई इन्फेक्शन किसी को हो जाती थी तो वो ठीक करनी बड़ी ही मुश्किल हो जाती थी। आज के टाइम में तो क्या है कि आपके कोई किसी के वुंड हो गया, कोई जख्म हो गया, तो उसको आप एंटीबायोटिक खा लो, वो ठीक हो जाता है। पर जब तक एंटीबायोटिक्स का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो वो कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो इंटरनल इन्फेक्शन हो, चाहे वो
एक्सटर्नल इन्फेक्शन है उसकी वो ठीक ही नहीं हो पाती थी। वर्ल्ड वार के टाइम में ऐसे ही हुआ, वर्ल्ड वार 1 में 2 में, कि जो इन्फेक्शंस थी वो, जैसे किसी को वुंड हो गया, गोली लग गई, तो वो इन्फेक्शन से ही मर जाता था इंसान। तो जब ये पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उससे बाद के से वर्ल्ड पूरा चेंज हो गया। और आज के टाइम पे एन नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल, सच एज एग्जांपल आर टेट्रासाइक्लिन, अमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड मैनी मैनी मोर, अमाइकासिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज के टाइम में तो बहुत हैं, पर इसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी जोन ऑफ इनिबिशन। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या पाया कि एक पेट्री प्लेट जिसके अंदर माइक्रोब्स ग्रो हो रहे हों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लाइंस दिख रही हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये मीडियम के ऊपर जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ है, उसको स्प्रेड करा हुआ है यहाँ पर बैक्टीरिया। तो इसके अंदर एक ये जो बीच में पैच आ रहा है, ये वाला, ये क्या है, पेनिसिलियम की कॉलोनी है। पेनिसिलियम क्या होता है, एक तरह का फंगस होता है, फफूंद होता है। तो ये फफूंद क्या कर रहा है, जहां पर ये ग्रो कर रहा है अपने आसपास इस एरिया के अंदर, यहां से लेके और यहां तक देखो आप, इसके बीच में ये बैक्टीरिया को ग्रो होने ही नहीं दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये कोई ऐसी चीज सेक्रेट कर रहा है जिसके कारण बैक्टीरिया की ग्रोथ हो ही नहीं रही है। सो दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ इनिबिशन। सो इट इज अ जोन इन विच देर इज नो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। सो यहाँ से इसने ऑब्जर्व करा कि जो पेनिसिलियम है वो कुछ ऐसी चीज बना रहा है जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही है, पर इसको वो आइसोलेट नहीं कर पाया बहुत टाइम तक। 1928 में डिस्कवरी होगी थी, पर 1945 के आसपास जाके फ्लोरे एंड चेन ने उसको आइसोलेट करा। आइसोलेट का मतलब होता है कि बहुत सारे केमिकल से उसको स्पेसिफिक पेनिसिलिन को अलग कर लिया, प्यूरिफाई कर लिया, फिर जाके उसको हम आगे यूज़ कर सके ह्यूमंस के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर। इसलिए इनको फिर बाद में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को और इनको फ्लोरे एंड चेन को नोबेल प्राइज़ मिला। तो यहाँ से हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं इस पेट्री प्लेट से, इसके अंदर माइक्रोब्स हैं और जोन ऑफ इनिबिशन बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर ये दिख रही है। जोन ऑफ इनिबिशन ये पूरा एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बीच में जो दो मैं लाइंस बना रहा हूँ, मैं अच्छी नहीं बना पा रहा थोड़ी सी, इसके बीच का जो एरिया है इसको कहते हैं जोन ऑफ इनिबिशन। इसके अंदर माइक्रोब्स की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। सो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल कंपाउंड्स विच आर सेक्रेटेड बाय सम माइक्रोब्स which inhibit the growth of other microbes in a very small concentration. So next are the branches of microbiology. Microbiology can be classified into number 1 प्योर माइक्रोबायोलॉजी। इसके जो सब टाइप्स हैं वो हैं बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगाई, फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गे, एल्गे होती है काई, जो हरे रंग की काई पानी में होती है, वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस, वायरसेस आर द organism which are at the border of living and dead. Protozoology, the study of protozoa. Immunology, the study of immune system. They can also be classified on the basis of integrative characteristics, जैसे microbial cytology, the study of microscopic and submicroscopic details, microbial physiology, the study of how the microbial cell function biochemically, include the study of microbial growth, microbial metabolism and microbial cell structure, microbial genetics, the study of how genes are organized and regulated in microbes in relation to their cellular functions, microbial ecology, the study of relationship between microorganisms and their environment, microbial taxonomy, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, कैसे नाम उनके रखने हैं, दैट इज नोन एज टेक्सोनोमी। सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के बीच में जो गैप को ब्रिज करे। मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉलिकुलर प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। जैसे मेडिकल फील्ड में है तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वेटरनरी में है तो वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी अगर पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई बात है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी अगर हमने इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ करना है, जैसे फर्मेंटेशन होगी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी अगर हम फार्मेसी में यूज़ करना है। एग्रीकल्चर, प्लांट और सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एग्रीकल्चर फील्ड में हो गया।
फूड माइक्रोबायोलॉजी, अगर फूड्स पहले से बचाना है या फूड की प्रिपरेशन करनी है, देन इट इज़ फूड माइक्रोबायोलॉजी। Environmental microbiology is the study of function and diversity of microbes in their natural environment. Water, aquatic, the study of those microorganisms that are found in water. Aeromicrobiology is the study of airborne microorganisms, हवा में होते हैं जो. Microbial biotechnology is the study of recombinant DNA technology और genetic engineering, कि कैसे DNA RNA को चेंज करके अपने काम में ला सकते हैं हम. Vaccinology defined as study of vaccines. Chemotherapy, study of drugs used to cure or control cancer. इसके बाद आता है नेक्स्ट इज स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. क्या क्या स्कोप है? Microbiology is a very broad field having its utilization in different areas such as medical, pharmaceutical, biotechnology, environment studies, food, petroleum, etc. तो हर बहुत सारे फील्ड में माइक्रोब्स का कहीं ना कहीं यूज़ आ ही जाता है. हम पहले भी पढ़ चुके हैं. मेडिसिन में क्या काम है कि इन्फेक्शन कौन कॉज कर रहा है, उसको कैसे रोकेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे. फार्मेसी में कैसे क्या यूज़ करेंगे, उनको किल कैसे करेंगे माइक्रोब्स को, नए माइक्रोब्स को कैसे बनाएंगे, नए कंपाउंड्स को कैसे बनाएंगे जो माइक्रोब्स को किल करते हो, एंटीबायोटिक्स को कैसे बनाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ करेंगे, जीन एडिटिंग कैसे करेंगे. सो स्टूडेंट्स, this is the end of lecture, and I think you have understood about the scope, history and introduction to microbiology. Thank you very much.